हाँ जी, एक्सरसाइज 3F का बस सैकेंड पार्ट कर लगे हैं। सो सैकेंड पार्ट में आप की करेंगे कि 3/3 ऑर्डर जो मैट्रिक्स है ना ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ फाइंड करेंगे। ठीक है, 3/3 ऑर्डर की जो ये वाली मैट्रिक्स है ਇਹਦਾ इनवर्स फाइंड करना बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो इस तो पहले आप 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड। ठीक है, सो हम ये वाली मैट्रिक्स की जो अपनी कैलकुलेशन है 3/3 ऑर्डर की, सो ये कैलकुलेशन लेंथी होगी थोड़ी 2/2 ऑर्डर की कंपेयरिंग। सो देखो इन्होंने आप किमें करना, थोड़ी ये इंट्रोडक्शन समझो इस ये वाले टॉपिक की। देखो ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ 3/3 ਆਰਡਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋ ਆਪਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ R1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਨ A11 ਨੂੰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ठीक है, सो A1 ज़्यादा रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके हो जाएगा या फिर इंटरचेंज करके होगा, इंटरचेंज रोज। ठीक है, रो है। ठीक है, सो हम तक आप रेसिप्रोकल करते हैं। सब तो पहले R1 के पहले एलीमेंट ਨੂੰ 1 बनाना है ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ रो थर्ड रो ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੀਨ 0 0 ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 0 0 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 1 ਨਾ ਉਹ 1 ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 0 0 ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, R2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ R3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੰਬਾਈਨ ਆਪਰੇਟ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ R2 ਤੇ R3 ਆਪਰੇਟ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਆਪਰੇਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ R1 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0, ਇੱਥੇ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ 1 ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ R2 ਇਹਨੂੰ 1 ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, तो जे ये 1 हो गया, ठीक है, ये वाला। फिर उस तो बाद आप ये वाली मैट्रिक्स ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। सो इट मीन ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है, सो फर्स्ट रो ਤੇ थर्ड रो, सो ਆਪਰੇਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ थर्ड रो ਤੇ फर्स्ट रो ਦੇ ਉੱਪਰ। ठीक है, तो थर्ड रो ਤੇ फर्स्ट रो ਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨॉन 0 ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਦੀ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੋਗਾ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ओके, सो हैल्प लवांगे R2 दी। ठीक है, ये हेल्प। ओके, सो ये सी सैकेंड स्टैप, ये फर्स्ट है, ये सैकेंड है। उस तो बाद जो इतने भी 0 हो गया, इतने भी 0, इतने 1 है। सो फिर आप R3 का ये वाला एलीमेंट है इनू ये वर्गा बनाना है, मीन इनू 1 करना है। R3 मीन A33 नू की है 1 करना है। सो इतने 1 हो जाएगा, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਰੋ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਇਹਨੂੰ 0 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹ 1 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, R1 ਤੇ R2 ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ R3 ਦੀ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੇਮ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ R1 ਨੂੰ 1 ਕਰਨਾ ਹੈ, फिर R2 के R3 में 0 करना है, हेल्प नहीं R1 की। फिर R2 के एलीमेंट में A22 ठीक है डायगनल एलीमेंट 1 करना है। फिर R3 ते R1 में 0 करना है, हेल्प नहीं R2 की। सेम इस तरह R3 में 1 करना है, R3 मीन डायगनल एलीमेंट तो R1 R2 में 0 करांगे, हेल्प लवांगे R3 की। ओके, सो हुण ये अपडेट आप याद किवें रखांगे कि पंजाबी च इहनूं कह सकते हैं पहलां तो ये याद रखनी है 1 1 बनाना है, डायगनल एलीमेंट टर्न बाय टर्न 1 बनाना है, डायगनल एलीमेंट को टर्न बाय टर्न 1 बनाना है। ठीक है, उस तो बाद ये ऑपरेटर ये वाले इन्होंने आप किहड़े तरीके याद रख सकते हैं, 23 31 12 23 31 12। सो इसका मतलब कि देखो R2 ते R3 इनू करना 0। सो हम ये कि रो मिसिंग है, R1 मिसिंग है ना, नहीं हेल्प लवांगे R1 की। उस बाद R3 ते R1 है, सो R3 ते R1 को करना 0, हेल्प लवांगे R2 की।
ਹੈਲਪ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਬਸ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ R1 R2 ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ R3 ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 1 ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ 1 ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ A। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀ ਇਨਟੂ A। ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋ ਆਪਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 1 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰੋ ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਰੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ 1 ਪਿਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ 1 ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ R1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਕੀ R1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ R2 ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੋ R1 ਨੂੰ R2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ, ਜਿਹੜੀ R2 ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ R1 ਹੈ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਜੂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਉਹੀ ਆਪਰੇਟ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ R2 ਇਹ R1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ R1 ਇਹ R2 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ R2 ਤੇ R3 ਨੂੰ 0 ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ R1 ਦੀ। ਸੋ R2 ਤੇ R3 ਨੂੰ 0 ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 0 ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ 0 ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ -1 ਹੈ, ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ 1 ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ 3 ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ 0 ਕਰਨਾ, ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ 1 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ 0 ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਇਹ 40 ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ 3 ਵਰਗਾ, 1 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ 3 ਵਰਗਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ 3, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ -1 ਹੈ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਫਸਟ ਆਪਣਾ R1 ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਹੈ ਇਹ ਥਰਡ ਰੋ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, 40 ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ 3 ਹੈ, ਸੋ 3 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ R1 ਨਾਲ, ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਹੈ R3 ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ R2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ R2 ਪਲੱਸ R1 ਐਂਡ R3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ R3 ਆਪਰੇਟ R3 ਮਾਈਨਸ 3 ਇੰਟੂ R1। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਅਨਚੇਂਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਨ 1 2 3 0 1 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰੋ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਰੋ ਐਡ ਕਰੀ, ਚਲੋ 0 3 5 1 1 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਰੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਰੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਸਟ ਰੋ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਰੇਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾ R3 ਮਾਈਨਸ 3 R1। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, 3 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ 1, ਸੋ 1 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ 3 ਨਾਲ, ਸੋ ਆਨਸਰ 0। ਸੋ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ 1 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ 2 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ, ਸੋ 1 ਮਾਈਨਸ 6 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 5। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ 1
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਬਟ 3 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ 3 ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ -8। ਸੋ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 0 ਵਿੱਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 0 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ -3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ 0 ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ R2 ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 1 ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਉਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 1 ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 1 ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿਤੇ 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 1 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ R2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲੱਗੂਗਾ, R2 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ 1/3 ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ 1 2 3 0 1 5/3, बाकी मैट्रिक्स सेम हो मेरे जी 0 1 0। सो R2 की मल्टीप्लाई 1/3 ना। सो 1/3 0 0 -3 1। ओके, सो देखो 23 ठीक है। हम वारी की इन्होंने दोनों रो की 0 होने की, ठीक है, थर्ड रो तो फर्स्ट रो की। सो हम इनू 0 किमें करांगे, सो इन्होंने दोनों 0 करने से आप हेल्प लवांगे R1 की, सॉरी R2 की, मीन इन्होंने दोनों की कोरसपोंडिंग 1 की। सो पहला गल करते -5 बारे। सो -5 तो ये वाला 1, इन्होंने दोनों किमें एडजस्ट करिए, आंसर 0 आ जाएगा। सो ये माइनस है, इतने प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये अपन पता लग जाए, जब दोनों पॉजिटिव हो तो माइनस आ जाए, विचाले माइनस आ जाएगा, जो एक नैगेटिव है तो फिर से प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि अपना मेन मोटिव की माइनस करना होता है। सो -5 तो 1 को किमें एडजस्ट करिए, आंसर 0 आ जाए। सो ये मल्टीप्लाई 5 ना करांगे, ठीक है, -5 + 5 × 1 0। सो हम ये कि रो का एलीमेंट है, थर्ड रो का एलीमेंट है। सो थर्ड रो प्लस करांगे सैकेंड रो में 5 के नाल मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उस तो बाद देखो 2 ते 1 2 ते 1 हम 2 ते 1 किमें एडजस्ट करिए, आंसर 0 आ जाए। हम दोनों पॉजिटिव है, सो विचाले माइनस आ जाएगा। सो 1 को 2 के वर्गा करना है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 2 ना हो जाएगी। ओके, 1 की मल्टीप्लाई 2 ना हो जाऊ। सो R1 के ऊपर ऑपरेट है, माइनस कर रहे हैं, R2 में माइनस कर रहे हैं, R2 की मल्टीप्लाई 2 ना कर रहे हैं। सो ये ऑपरेट है। ओके, सो देखो कि R3 के ऊपर ऑपरेट है, R3 + 5 R2 एंड R1 के ऊपर ऑपरेट है, R1 - 2 R2, ठीक है। सो आप ये ऑपरेट में याद कितने कितने 23, देखो भाई 23 31 तो 31, तो वही रूल आप फॉलो कर रहे हैं। तो देखो R2 अपनी की है, ये हेल्प ले रहे हैं, मतलब ये चेंज नहीं होती, 1 5/3 1/3 1/3 0, ठीक है। सो R1 पहले आप R3 सॉल्व करते हैं। सो R3 विच की है प्लस करना R2, मतलब 0 0 प्लस 0। उस तो बाद देखो -5 के 1 को प्लस करांगे 5 ना मल्टीप्लाई करके, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो -8 में प्लस करना 5/3 की मल्टीप्लाई करनी 5 ना। ओके, सो इन्हें सॉल्व करते हैं, -8 25/3 एलसीएम लवांगे। सो ये हो 24 माइनस का प्लस 25/3, सो बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। ओके, उस तो बाद इधर भी देखो R3 में 0 में करना आप ऐड 1/3 5 ना करना मल्टीप्लाई, सो ये ऐड हो 5/3 बन जाऊगा। ओके, सो फिर ये कोरसपोंडिंग -3 करना ऐड, -3 में करा ऐड आप 1/3 × 5। सो -3 + 5/3 सॉल्व करा इस तरह, ये आ जाएगा -4/3, ठीक है। सो 1 के 0 की ऐड 1 नहीं आ जाएगा। हम फस्ट रो के उपर ऑपरेट करते हैं कि फस्ट रो के माइनस करना सैकेंड रो 2 ना मल्टीप्लाई करके। सो ये 1 के 0 माइनस किया तो 1 नहीं आ जाऊगा। तो 2 के 1 करेंगे माइनस 2 के मल्टीप्लाई करके 1 की तो भी 0 आ जाऊगा। सो हम देखो ये 3 करना -5/3, 3 विचों करना -5/3 मल्टीप्लाई करनी 2 नाल। सो सॉल्व करें 3 - 10/3 सॉल्व करा ये आ जाऊगा
ਮਾਈਨਸ 1/3। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਹੀ R1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 1/3, ਬਟ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀ ਕਰਨੀ 2 ਨਾਲ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 2/3। ਸੋ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ 1/3, ਬਟ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀ ਹੋ ਰਹੀ 2 ਨਾਲ, ਸੋ 1 ਮਾਈਨਸ 2/3 ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/3। ਸੋ ਇੱਥੇ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 23 31, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ R3 ਨੂੰ 1 ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ R3 1 ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ 1 0 ਮਾਈਨਸ 1/3 0 1 5/3 0 0, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ R1 ਤੇ R2 ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀ ਕੀਤੀ 3 ਨਾਲ 5 ਮਾਈਨਸ 4 ਤੇ 3। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਮ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ, ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट ਨਾਲ मैच करता है, वो भी अपने ट्राई करना है, सेम वही ऑपरेट फॉलो करने हैं। सो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो ये वाली मैट्रिक्स अपन ए गिवन है, ये वाली, सो इन पर ए इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। सो इस बाद शुरू करते हैं, देखो इतने ए। ओके, सो देखो शुरू करते हैं। हम पहली रो का पहला एलीमेंट 1 होना चाहिए। सो इनू 1 करने आप ये पूरी रो की मल्टीप्लाई करेंगे ये रेसिप्रोकल कि 1/2 ना, R1 के उपर ऑपरेट है R1 इंटू 1/2। देखो इतने 1 आ जाएगा 0 माइनस 1/2 5 1 0 0 1 3 1/2 0 0। सो बाकी मैट्रिक्स सेम उवें रहेगी, बाकी रो, ठीक है। सो देखो उस तो बाद हम आप R1 पहला एलीमेंट की 1 हो चुके, सॉरी, ठीक है 1 हो गया। सो उस बाद आप R2 तो R3 के जो ये वाले एलीमेंट है इन्होंने 0 करना है, हेल्प लवांगे ये। सो देखो ना ये तो 0 ऑलरेडी है, ये तो कोई अपनी दिक्कत ही नहीं। सो 5 को 0 करना है, ये वाले 5 में देखो 5 तो 1 इन्होंने दोनों को किमें एडजस्ट करिए, आंसर 0 आ जाए। सो दोनों प्लस दे 40 माइनस आ जाएगा। सो 1 5 के वर्गा बनाना है, सो 1 की मल्टीप्लाई 5 के नाल करांगे। सो 5 माइनस 1 इंटू 5 आंसर 0। सो जो 5 है ये R2 का एलीमेंट है, जो ये 1 है R1 का, R1 की मल्टीप्लाई 5 ना। सो ये ऑपरेट है कि R2 के उपर ऑपरेट लगेगा R2 माइनस 5 इंटू R1। तो देखो सॉल्व करते हैं 1 0 माइनस 1/2। तो थर्ड रो सेम उमें होगी, फर्स्ट रो भी सेम अपनी उमें रहू, तो थर्ड रो भी सेम उमें रहू। ओके, सो देखो सॉल्व करते हैं इन्होंने दोनों। 5 के विचों 1 करेंगे माइनस 5 के मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ जाऊ। सो 1 के विचों करेंगे 0 माइनस तो 1 ही आ जाऊ। तो देखो ना 0 विचों करना माइनस 1/2, यदि मल्टीप्लाई करनी 5 के नाल, सो इसका आंसर ही 5/2। ओके, उस तो बाद जोड़ा ये 0 है ये माइनस करना 1/2, तो यदि मल्टीप्लाई करनी 5 नाल, ये वाले ऑपरेटर की हेल्प नाल, तो ये भी माइनस 5/2 आ जाऊगा, इतने 1 अच्छे 0 आ जाऊगा। ओके, उस तो बाद देखो सैकेंड रो का जो एलीमेंट 1 बनाना पाए, तो ऑलरेडी 1 नहीं है, सो आपको कोई दिक्कत नहीं इचों। सो उस तो बाद R3 को करना 0 तो R1 को करना 0 यदि हेल्प नाल, सो ये 0 ही है। हम आप इनू 0 करना है, ठीक है। R3 को करना 0, R3 के उपर ऑपरेट 1 के 1 माइनस करेंगे R3 माइनस R2। ओके, सो 1 0 1 माइनस 1/2 0 1 3, सो इतने 1/2 माइनस 5/2। सॉरी सैकेंड रो चेंज होगी, ठीक है। सो थर्ड रो होगी 0 0 1। ये आप सैकेंड, सॉरी स्टेप ही रॉन्ग है, थर्ड रो चेंज होनी थी, आप थर्ड रो लिखती थी। देखो दोबारा ध्यान, थर्ड रो के उपर ऑपरेट है, थर्ड रो विचों सैकेंड रो हो जाएगी माइनस,
ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਸਟ रो सेम उवें आ जाओ अपनी, सैकेंड रो की हेल्प ली है ये भी उवें आ जाओ, ये चेंज नहीं होना। थर्ड रो के उपर ऑपरेट है सो ये चेंज हो गया, 0 विचों 0 माइनस 0, 1 विचों 1 माइनस 0, 3 विचों माइनस 5/2 करांगे सो सॉल्व हो के 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सो 0 विचों माइनस 5/2 माइनस करांगे सो ये पॉजिटिव 5/2 बन जाऊगा। सो 0 विचों 1 माइनस किया तो माइनस 1 आ जाएगा, 1 विचों 0 1 आ जाएगा। ओके, उस तो बाद देखो कि थर्ड रो का ये वाला एलीमेंट 1 करना है, सो इनू 1 बनाने वास्ते ये मल्टीप्लाई करेंगे आप ये रेसिप्रोकल नाल। सो इनू इत्थे सॉल्व कर देने, R3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 नाल। सो हुण ये रो बनेगी 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2 0 0 1। तो बाकी दो रो सेम रहनी है, थर्ड रो चेंज हो जाएगी 5 माइनस 2 ते 2। ओके, उस तो बाद देखो हम इत्थे भी 1 बन चुके हैं। सो हम इत्थे मैं पहली रो तो दूजी रो में 0 करना है। ठीक है, हेल्प लाओगे ये कोरसपोंडिंग 1 की। तो देखो ध्यान नाल कि माइनस 1/2 है, एक मिनट, ये माइनस 1/2 है तो ये 1 है, इन्होंने दोनों को किवें एडजस्ट करिए आंसर 0 आ जाए। ये माइनस है इतने प्लस हो जाऊ तो 1 की मल्टीप्लाई 1/2 ना हो जाऊ, क्योंकि 1 आप ये वर्ग बनाना है, हमेशा गल याद रखियो। सो 1 माइनस 1/2 ये R1 है, इतने प्लस है तो 1 R3 है तो मल्टीप्लाई 1/2 है। सो R1 के उपर ऑपरेट की लगेगा, R1 ऑपरेट प्लस R3 की मल्टीप्लाई 1/2 ना। ओके, सो इस तरह 5/2 तो 1 इन्होंने दोनों को किमें एडजस्ट करिए आंसर 0 आ जाए। सो दोनों पॉजिटिव है विचाले माइनस आ जाऊ तो 1 की मल्टीप्लाई 5/2 हो जाऊ। तो जो 5/2 है R2 का एलीमेंट है, इतने माइनस R1 R3 का एलीमेंट है, ये प्रोडक्ट 5/2 ना। ओके, सो ये ऑपरेट हो जाएगा R2 के ऊपर R2 माइनस R3 मल्टीप्लाई 5/2। देखो कि R3 तो अपनी सेम उवें रू, क्योंकि ये R3 की आप हेल्प लै रहे हैं। सो R1 के विचों ऐड करना है R3 नूं ते R3 की मल्टीप्लाई करनी 1/2 नाल। सो 1 नूं करांगे ऐड 0 नाल, तो 0 की मल्टीप्लाई करनी 1/2 नाल, तो कोई चेंज ही नहीं है, ये 1 रह जाऊगा। सो आ दोनों 0 हो जाएंगे तो माइनस 1/2 1 करांगे ऐड, बट ये मल्टीप्लाई करनी 1/2 नाल, तो दोनों जो ऐड करांगे आंसर 0 आ जाऊ। ओके, सो उस तो बाद देखोगे 1/2 करना ऐड 5 नूं, बट 5 की मल्टीप्लाई करनी 1/2 नाल। सो ये दोनों ऐड होकर बन जाए 6/2, सॉल्व हो गया आंसर हुआ 3। ओके, सो 0 करना -2 ऐड, ठीक, ये -2 तो मल्टीप्लाई करनी 1/2 नाल, सो सॉल्व हो गया आंसर हुआ -1। तो 0 करना ऐड 2 तो 2 करना मल्टीप्लाई 1/2 नाल, सो सॉल्व हो गया आंसर हुआ 1। हम सैकेंड रो देखो, सैकेंड रो विच करनी थर्ड रो माइनस 0 विच 0 माइनस 1 विच 0 माइनस 1, 5/2 करेंगे 1 माइनस मल्टीप्लाई 5/2 करके ये भी 0 हो जाऊ। ठीक है, हम देखो -5/2 विच करना -5, बट यदि मल्टीप्लाई करनी 5/2 नाल। ओके, सो -5/2 तो -25/2, सॉल्व हो के आंसर -30/2, तो इन्हें कैंसल करेंगे -15 आ जाऊगा, -15। ओके, सो फिर 1 करना आप -1 के करना -2 तो यदि मल्टीप्लाई करनी 5/2 नाल, सो 1 + 2 × 5/2, तो ये कैंसल हो जाएंगे, 1 + 5 6 आएगा। ओके, सो सेम इसी तरह 0 करना है -2 तो 2 की मल्टी 5/2 नाल, तो 0 - 5 -5 आ जाएगा। ठीक है, सो देखो हम ए बन चुकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए बन गया इनवर्स, देन ए का इनवर्स इज इक्वल टू 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2, सो ये अपना आंसर। हाँ, सम नंबर 7 का 4th पार्ट देखो। सो ये मैट्रिक्स ए है जी, ए वाली है, ये आप इनवर्स फाइंड करना है। सो इन्होंने पढ़ेंगे ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ए, सो इतने वैल्यू पुट करती हम अपने सॉल्व करते हैं। देखो रो ऑपरेशन लगाऊंगे ऊपर
कि हम अपनी पहली रो का पहला एलीमेंट 1 होना चाहिए, ठीक है। सो इन 1 बनाने से आप इन 1/2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है। फर्स्ट ਨੂੰ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट ध्यान ਨਾਲ देखो कि ये कोरसपोंडिंग कितने अपन 1 मिल रहा है, हाँ आर तीजी रो च, ठीक है। थर्ड रो 1 मिल रहा है, मीन फर्स्ट तो थर्ड आप दोनों की इंटरचेंज कर देंगे, R1 इंटरचेंज विद R3, ओके। सो सैकेंड रो सेम उवें रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जी फर्स्ट रो है वो थर्ड रो बन जूगी, जी थर्ड रो फर्स्ट बन जू, मतलब फर्स्ट रो अपनी ए हो जूगी तो थर्ड रो अपनी ए हो जू, ओके। उस तो बाद इधर भी चेंज हो जू 0 0 1 0 1 0, ओके। उस तो बाद देखो हुण आपां इन्हां दोनों नूं 0 करना है, 5 ते 2 हैल्प लाओगे, इन्हां दोनों की कोरसपोंडिंग 1 आ गई। सो देखो सैकेंड रो थर्ड रो के उपर ऑपरेट लगू, देखो किमें लगेगा, 5 नूं करना 0, हैल्प लैनी 1 की। सो इनू किमें एडजस्ट करिए आंसर 0 आ जाए, तो दोनों पॉजिटिव है तो चलो माइनस आ जाओ। सो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 नाल, ठीक है। सो जो 5 है ये R2 है, जो 1 है ये R1 है, तो 5 करेंगे मल्टीप्लाई, ये वाला ऑपरेट कि R2 के ऊपर ऑपरेट लगेगा R2 माइनस 5 इंटू R1। सेम इस तरह ही 2 तो 1 की हेल्प लेनी है, इतने माइनस आ जाएगा तो 1 की मल्टीप्लाई 2 ना करेंगे 0, जो 2 है ये R3 का एलीमेंट है, जो 1 है R1 का एलीमेंट है, 40 माइनस 2 इंटू R1 कि R3 माइनस 2 इंटू R1। सो ये दो ऑपरेट आप ये अप्लाई करेंगे, तो देखो R3 के ऊपर ऑपरेट है R3 माइनस 5 इंटू R1 एंड R2 के ऊपर ऑपरेट है सॉरी R3 माइनस 2 इंटू R1 है, R2 के ऊपर ऑपरेट है R2 माइनस 5 R1, ओके। सो देखो सॉल्व करने पे कि R1 की हेल्प ले रहे हैं, सो ये तो चेंज नहीं होगी। सो 5 माइनस 1 इंटू 5 कि R2 के ऑपरेट है 5 के 1 करना माइनस, ये 1 की मल्टीप्लाई करनी 5 नाल, तो 0 हो जाएगा। सो माइनस 3 देखो माइनस 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करना माइनस 1 तो मल्टीप्लाई करनी 5 नाल, माइनस 3 माइनस 5 आंसर आएगा माइनस 8। सो फिर 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करना है आप 3 माइनस तो मल्टीप्लाई करनी 5 नाल, तो इन्हों सॉल्व करांगे आंसर आएगा माइनस 14। तो सेम इस तरह इतने 0 आ जाऊ 1 आ जाऊ तो माइनस 5 आ जाऊ। सो देखो फिर R3 के ऊपर ऑपरेट आएगा R3 माइनस 2 इंटू R1 तो 0 आ जाऊगा। सो 3 के विचों करांगे 1 ਨੂੰ माइनस 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके इतने 1 ही आ जाऊगा। सो 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 करांगे माइनस, ये 3 की मल्टीप्लाई 2 ਨਾਲ 1 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5 आ जाऊ, ओके। सो इस तो बाद इधर भी लगेगा 1 माइनस 0 1 ही आ जाऊ, 0 माइनस 0 0, तो 0 माइनस 2 माइनस 2, ओके। सो ये 0 हो चुका है। फिर आप करांगे इनू 1 सैकेंड रो 1 करना है, सो सैकेंड रो 1 करने वास्ते मल्टीप्लाई करना पर ये रेसिप्रोकल नाल माइनस 1/8 नाल। सो 1 0 0 1 3, सो इतने 1 तो माइनस 14 बाई माइनस 8 सॉल्व करांगे 7/4 आ जाएगा, ठीक। तो इतने 1 माइनस 5 फर्स्ट रो सेम 0 0 1 1 0 माइनस 2, सो इधर मैट्रिक्स ए लिखना। सो 0 की मल्टीप्लाई की 1/8 नाल 0, 1 की मल्टीप्लाई की माइनस 1/8 नाल, सो माइनस 1/8, सो एक पॉजिटिव 5/8 आ जाओ, ओके। सो देखो हुण आपां इत्थे तो 1 ले आए, हुण इत्थे सैकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो तो थर्ड रो इनू करना 0। सो इसका एलीमेंट सेम ही है, सिंपल R3 चो R2 माइनस करांगे, R1 चो R2 माइनस करांगे, R3 ऑपरेट R3 माइनस R2 एंड R1 ऑपरेट R1 माइनस R2। तो देखो 1 R2 अपनी सेम उम्र होगी तो 0 माइनस 1/8 5/8। सो पहला आप फर्स्ट रो सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0, सो 3 माइनस 7/4, सो इनू करेंगे सॉल्व 12 माइनस 7/4 मीन्स 5/4, ओके। सो 0 माइनस 0 0, सो 0 विचों माइनस करेंगे माइनस 1/8 ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 के विचों माइनस करेंगे 5/8 1 माइनस 5/8, सो इन्हें सॉल्व किया आ जाएगा 3/8।
से 1/8, ठीक है, 3/8। फिर R3 जो R2 माइनस करना, 0 0 1 to 0, सॉरी से 1 है, ठीक। सो -5 -7/4, सो इन सॉल्व करेंगे अपना जी -27/4, ठीक। तो उस तो बाद देखो 1 -0 1 0 -1/8 पॉजिटिव 1/8, सो -2 तो -5/8, सो इन करेंगे सॉल्व भाई आप, ये आ जाएगा -21/8, ओके। सो देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ R3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 1 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ 1 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ 1 0 5/4, 0 1 7/4, ਸੋ 0 0 1, ਸੋ ਇਧਰ 0 1/8 3/8 0 -1/8 5/8। सो हम यदि मल्टीप्लाई करनी आप 4 -4/27, सो इतने -4/27, सो 1/8 की मल्टीप्लाई करेंगे आप -4/27, सो दोनों कैंसल हो जाएंगे। सो इतने आ जाएगा -1/54, सो 21 -21/8 की मल्टीप्लाई करनी आप -4/27, सो ये कैंसल। सो इतने आप -21/54 लिखांगे, ओके। 54 पर इतने क्यों इनू गां क्यों नहीं कैंसल किया, ये दोनों कैंसल हो रहे हैं, इन्हें तो नहीं कैंसल किया कि नीचे 54 आ रहा है ना, तो 54 आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जो डिनोमिनेटर सेम रहूगा तो अपने कॉमन लैन प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उस तो बाद देखो सॉरी 21 है पॉजिटिव आएगा, जो माइनस ना माइनस कैंसल हो, ठीक है, पॉजिटिव। सो देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ R3 ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਕਰਨਾ, ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਦੇਖੋ ਕਿ 5/4 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ 0 1 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਤੇ 7/4 ਨੂੰ ਕਰਨਾ 0 1 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5/4 ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7/4 ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊ, ਠੀਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5/4 ਹੈ ਇਹ R1 ਹੈ, ਇਹ R3 है, सो माइनस 5/4 आ जाऊ, ये R2 है, ये 7/4 है, ये R3 है, ये ऑपरेट लगेगा। तो देखो R1 के ऊपर ऑपरेट है R1 -5/4 इंटू R3, एंड R2 के ऊपर ऑपरेट है R2 -7/4 R3, ठीक। तो देखो सॉल्व करते हैं, R3 अपना 0 0 1 -4/27 -1/54 21/54, ओके। सो देखो आप फर्स्ट सॉल्व करते हैं, सो ये सॉल्व किया ये वाला ऑपरेटर लगा के, तो जो 1 0 0 आ जाएगा। सो देखो इनू करें सॉल्व आप, सो 0 विचों करना -5/4 की करनी मल्टीप्लाई R3 नाल, सो R3 के कॉरस्पोंडिंग होना है 0 के कॉरस्पोंडिंग R3 विच कौन है -4/27, सो 4 में 4 कैंसल, ये पॉजिटिव मीन इतने आएगा 5/27, ओके। उस तो बाद 1/8 के विचों करना -R3 का एलीमेंट की है 1/8 -5/4, सो 1/8 के कॉरस्पोंडिंग होना है -1/54, ओके। सो हम अपन सॉल्व करने, देखो सो इनू करेंगे आप सॉल्व, देखो 1/8, सो ये दोनों प्लस हो जाएंगे 5/, सो इन्हें दोनों मल्टीप्लाई 216, सो इधर एलसीएम 216, सो 216 करेंगे 8 ਨਾਲ डिवाइड 27 + 5 मीन 32/216, सो ये 4 टेबल पर कैंसल होंगे 8/54, तो इतने आ जाएगा 8/54, ओके। सो उस तो बाद करना सॉल्व, देखो 3/8 ਨੂੰ माइनस करना 5/4 ਨਾਲ, R3 के कॉरस्पोंडिंग 21/54, ओके। सो 3/8 -21 की मल्टीप्लाई 5 ने की 105/216, सो एलसीएम लवांगे 216, सो इनू कितना डिवाइड ये 27 की मल्टीप्लाई की 3 81 -105, सो हम इन्हें दोनों की करेंगे -4 2 84/216, सो ये 4 टेबल कैंसल हो जाएंगे,
सो कैंसिल हो गया आंसर आ जाएगा अपना इतने साइन नेगेटिव आएगा प्लस माइनस माइनस साइन बिक्रीज 6/54 -6/54 ठीक है। सो -6/54 ओके। सो ए सी में फर्स्ट रो उस तो बाद सैकेंड रो देखो इतने 0 1 0 आ जाएगा ये वाला रो में आप अपलाई करा ये वाले ऑपरेट में ठीक है। सो देखो सैकेंड रो की है 0 ਨੂੰ करना -7/4 की मल्टीप्लाई R3 ਨਾਲ तो R3 -4/27 सो 4 और 4 कैंसल 0 + 7/27 सो आंसर आएगा 7/27 ओके। उस तो बाद देखो -1/8 -1/8 करना -7/4 की मल्टीप्लाई करनी -1/54 ਨਾਲ तो देखो 1/8 माइनस प्लस 7/216 सो 216 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ सो इतने आ जाएगा -27 प्लस 7 -20/216 सो 480 कैंसल हो जाएंगे -5/54 सो इतने आंसर है -5/54 ठीक। उस तो बाद 5/8 ਨੂੰ सॉल्व करना है 5/8 ਨੂੰ सॉल्व करांगे -7/4 की मल्टीप्लाई करनी है 21/54 ਨਾਲ तो 5/8 -147 इंटू सो 147 डिवाइड बाय 216 सॉल्व करा आप सो इन करेंगे ये डिवाइड 27 आ जाएगा 27 की मल्टीप्लाई 5 ना करा आप सो आंसर 135 3 कैरी 135 -147 सो इन करेंगे कैंसल सॉरी सबट्रैक्ट करेंगे सो आंसर -12/216 4 टेबल कैंसल -3/54 सो इतने आ जाएगा -3/54 सो हम जो ए अपना की है इतने मैट्रिक्स ए आएगा सो इतने भी मैट्रिक्स ए आएगा ना ठीक है। सो हम ए अपना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सो ए अपना आंसर है ठीक है 5/27 8/54 -6/54 7/24 -5/24 -3/54 and -4/27 -1/54 21/54 ठीक है। सो जो बुक के आंसर कुछ वक्रा दे रखे ना डिफरेंट है वो 1/54 कॉमन लै रखा है ठीक है। सो 1/54 जो कॉमन लेना मतलब ये हरेक डिनोमीनेटर के नीचे 1/डिनोमीनेटर नीचे 54 होना चाहिए सो इतने 54 है नहीं सो इन 54 बनाते 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने सो आ जाएगा 10/54 आएगा सो इतने भी 2 ਨਾਲ 14/54 आएगा इतने -8/54 आ जाएगा ठीक है। सो बुक के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर मैच करना है तो इन्हों का डिनोमीनेटर 54 कर दो ठीक है अदरवाइज अपना आंसर इतने बिल्कुल सही है ये भी। सो जो अगर 2 ਨਾਲ करेंगे मल्टीप्लाई इतने 10 आ जाएगा फिर 8 -6 14 -5 -3 -8 -1 एंड 21 सो ये अपनी आंसर। सो इस जो मेन सम सी अपनी कंप्लीट हो गई इस टॉपिक की जो बाकी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जिन्ने सम बचे वो सेम इस ट्रिक में सॉल्व करने वो तुम अपने आप कोशिश करो सॉल्व करने की ठीक है। हाँ जी सम नंबर 7 का 7th पार्ट लास्ट वाला पार्ट सो सॉल्व करते हैं भी देखो मैट्रिक्स ए गिवन है सो इन्होंने इस तरीके लिख सकते हैं तो इतने वैल्यू पुट करती तो पहला एलीमेंट 1 होना चाहिए ये 1 नहीं है सो हम इन्होंने दोनों 0 करना है तो देखो सो R2 के ऊपर ऑपरेट लगेगा R2 + 3R1 क्योंकि इतने माइनस है सो जे इतने नेगेटिव फिर आप इतने पॉजिटिव करेंगे तो R1 के ऊपर ऑपरेट लगेगा R1 -2 × R3 है वैसे ठीक है R3 सो देखो सॉल्व करते हैं अपनों कि R1 तो अपनी सेम हो मिलेगी मैट्रिक्स ए आएगा सो हम इनू करेंगे ऐड 0 सो 0 के किया ऐड 3 × 3 9 सो -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਡ -2 × 3 ਸੋ -1 -6 -7 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਐਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰ 1 ਫਿਰ 0 ਸੋ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ 1 ਬਟ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ 2 ਨਾਲ तो 0 1 -3 × 2 -5 तो 0 इतने 4 आ जाएगा ठीक है इतने -2 आ जाएगा 0 1 ओके। फिर मैंने इतने 1 करना है R2 की मल्टीप्लाई करनी 1/9 फर्स्ट 3 -2 0 1 7/9 0 -5 4
1 0 0 3 बाई 9 किया तो 1 बाई 3 आ जाएगा, 1 बाई 9 आ जाएगा 0 -2 0 1 मैट्रिक्स ए। ओके सो देखो हम इतने भी 0 करना है तो इतने भी 0 करना है, हैल्प लेनी है यदि ठीक है। सो R3 में जो 0 करेंगे सो R3 के अपडेट लगे R3 + 5 × R2 तो R1 के उपर अपडेट लगेगा R1 - 3 R2। ओके सो 0 1 -7 बाई 9 1 बाई 3 1 बाई 9 0। सो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 0 प्लस 1 ही है 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखो 3 - 1 × 3 ये वाला अपडेट तो 0 हो जाएगा। सो -2 माइनस फॉर्मूले में माइनस तो इतने 7 बाई 9 है यदि मल्टीप्लाई करनी 3 ना फिर दोनों कैंसिल हो 3 आ जाएगा। -2 + 7 बाई 3 सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1 बाई 3। ओके सो सेम इस तरह 1 ਦੇ ਵਿੱਚ करना माइनस आप 1 बाई 3 × 3 सो इतने आ जाएगा 0 सो इतने आ जाएगा -1 बाई 3 तो 0। ओके सेम इस तरह 0 0 सो 4 ਦੇ ਵਿੱਚ प्लस करना है 5 × -7 बाई 9 मीन 4 - 35 बाई 9 सो 36 - 35 1 बाई 9। ओके सेम इस तरह कि -2 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करना है +5 × 1 बाई 3 सो सॉल्व करेंगे अपना आंसर -2 + 5 बाई 3 सो इतने आ जाएगा -1 बाई 3। ओके सो 0 ਦੇ ਵਿੱਚ माइनस करना है 1 बाई 9 × 3 सो ये आ जाएगा -1 बाई 3 इतने 1। सो हम आप करना 1 सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 के नाल। सो R3 का अपडेट 1 बाई सो R3 पर अपडेट की मल्टीप्लाई विद 9 सो बाकी रो अपनी सेम ही रहनी है। सो ये मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी 0 -1 बाई 3 0 1 बाई 3 1 बाई 9 0 सो ये मल्टीप्लाई की 9 नाल -3 ते 9। ओके सो देखो सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी जो R3 में 5 × R2 ऐड कर रही थी ना सो इतने गलती होगी इतने 5 बाई 9 आएगा ठीक है। सो इतने गला 5 आएगा कैलकुलेशन पर ध्यान रखना ठीक है इस गल का। सो देखो हम इतों तक आप सॉल्व कर चुके हैं। सो देखो हम आप R1 का ए एलीमेंट तो R2 का ए एलीमेंट 0 करना है हैल्प लवेंगे इन्होंने दोनों 0 करना से यदि R3 की सो 1 बाई 3 तो 1 को किमें एडजस्ट करेंगे पता ही अपन कि आंसर 0 आ जाए विचाले माइनस आऊ तो मल्टीप्लाई विद 1 बाई 3 सो R1 के उपर अपडेट है R1 - 1 बाई 3 × R3। ओके सो R2 के उपर अपडेट आएगा R2 सो इतने प्लस हो जाएगा क्योंकि इसे नेगेटिव ऑलरेडी है सो आप प्लस कर देंगे 7 बाई 9 × R3 ठीक है। सो R3 तो अपनी सेम ही रहेगी रो 0 0 1 -3 5 9 मैट्रिक्स ऑफ ए। सो R1 सॉल्व करेंगे अपना आंसर से 1 0 0 आ जाएगा। सो 0 करना सॉल्व 0 के करना -0 माइनस ये कोरसपोंडिंग R3 पे -3 सो ये मल्टीप्लाई करनी 1 बाई 3 ना कैंसल माइनस माइनस प्लस 0 + 1 1 आ जाएगा ठीक है। सो देखो सो -1 बाई 3 इनू करना -1 बाई 3 मल्टीप्लाई करनी है R3 सो -1 बाई 3 कोरसपोंडिंग 5 है। ओके सो ये आ जाएगा -1 बाई 3 -5 बाई 3 तो -6 बाई 3 सॉल्व के आंसर आएगा -2। ओके सो 0 करना -9 ना 0 -9 बट 9 की मल्टीप्लाई करनी 1 बाई 3 ना सो 0 -3 आ जाएगा -3। ओके हम सॉल्व करते हैं R2 0 1 0 आ जाएगा। इधर देखो 1 बाई 3 + 7 बाई 9 × R3 सो 1 बाई 3 + 7 बाई 3 × -3 सो एक कैंसिल 7 बाई 3 1 बाई 3 - 7 बाई 3 सो -6 बाई 3 सॉल्व करेंगे आंसर आएगा -2। ओके सो इसी तरह ही 1 बाई 9 है प्लस करना 7 बाई 9 × 5 सो ये हो जाएगा 1 बाई 9 + 35 बाई 9 सो ऐड करेंगे 36 बाई 9 आ जाएगा। सो इन्हें कैंसिल करेंगे आंसर 4 आ जाएगा। ओके सो 0 + 7 बाई 9 × 9 सो इसका आंसर 7 आ जाएगा। सो ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स सो ये कोरसपोंडिंग ये वाली अपनी मैट्रिक्स की है ये इनवर्स है ये वाली।
ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3F ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਮ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਇਸ ਦੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ R1 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਕੀਤਾ, ਫਿਰ R2 ਤੇ R3 ਨੂੰ ਕੀਤਾ 0 R1 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਫਿਰ R2 ਨੂੰ 1 ਕੀਤਾ, ਫਿਰ R3 ਤੇ R1 ਨੂੰ ਕੀਤਾ 0 R2 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਫਿਰ R3 ਨੂੰ 1 ਕੀਤਾ, ਫਿਰ R1 ਤੇ R2 ਨੂੰ ਕੀਤਾ 0 R3 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਸੇਮ ਇਸ ਦੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3F ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਚੈਪਟਰ 3rd ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ।